Hello students, this is Utkarsh Bhargav. In this lecture, I'm going to start with an absolutely new chapter of unit number 3rd of class 11th Indian Economic Development. The chapter which we're going to start is the infrastructure. Now, the word infrastructure is itself a very, very dynamic term. You may have used, you may have heard, you may have tried to explain this concept, I guess, so many times before. But today, I'll try my best to clear each and every concept related to infrastructure in your mind. So, initially, let us begin with the basic meaning and the way to express the term infrastructure. So let us begin, guys. The infrastructure. Before starting up with the conventional definition, the orthodox definition, let us try to understand the meaning of infrastructure. Sometime I've seen this thing in my live classes that the term is very easy. Means students know about this term. They have heard that term so many times. But when it comes to define this term, many of the student fails. And some students simply answer, infrastructure means, say, real estate, big buildings, towers is basically infrastructure. So I'll say that your definition is incomplete. I'm not saying it is wrong. I'm saying it is incomplete. What the students have said is not incorrect because they are focusing on only one part of infrastructure. The concept of infrastructure is far beyond the real estate, buildings, towers, etc. It's far, far beyond. तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ ये बिल्डिंग्स, ये टावर्स नहीं आते, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, देयर इज अ वेरी easy definition by me of infrastructure, that anything which we can see around us is a part of infrastructure. Anything. आपकी कंट्री के अंदर कोई क्या डिलीवर कर रहा है, आपके आसपास जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, बट वो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है. सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. सो ये जो गवर्नमेंट ने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है आपकी इकोनॉमी के अंदर, ये क्या है? ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही तो पार्ट है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज refers to all such services or facilities which are needed to provide different kind of services in an economy. जिनकी जरूरत पड़ती है जब भी कोई गुड या कोई सर्विस डिलीवर करने की बात आए तो. इट contributes to economic development of an economy both by raising the productivity of factors of production and by improving the quality of life of public. Fine, कि ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है और लोगों की
जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी इंप्रूव करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स एवरीथिंग वी कैन सी अराउंड अस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स एवरीथिंग वी कैन सी एंड फील अराउंड अस। जो भी हमें दिखता है, जो भी हम फील कर सकते हैं, वो सब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। लाइक रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, कैनाल्स, फ्लाईओवर्स, हाईवेज, सीवेज सिस्टम, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, internet is the thing which you cannot see. Similarly, communication services you cannot see. Every time we are surrounded with the waves, the waves of the internet, the waves of the telecommunication services, we cannot see them, but yes, when you turn on your phone you can feel them very well, because internet is everywhere, the signals of telecommunication services everywhere, you cannot see them. So yes, the infrastructure can also be intangible. It is not necessary that it is always tangible, it can be intangible as well. Hospitals, etc. So the term infrastructure is really very big. It has a very wider scope. And as I said, that anything which we can see and feel around us is a part of infrastructure, because that particular thing is there because of a strong motive, a purpose, and that purpose makes that product a part of infrastructure. Simple. Then, after the infrastructure, there are the types of infrastructure. So there are the types of infrastructure. Now, what are the types? Of course, there are two types. The number one is the economic infrastructure. Now, what is this economic infrastructure? Guys, economic infrastructure is basically the infrastructure which directly focusing upon only one thing, and that is the profit making. The basic agenda behind the construction of economic infrastructure is to make money. On the other hand, the social infrastructure, its basic agenda is to maximize the social welfare, to uplift the standard of people in the society, to increase the per head availability of different services. This is the agenda behind the social infrastructure. That is why we have social infrastructure. So let us start it one by one. As I said, economic infrastructure, the only motive behind the economic infrastructure is to let the people make money. What can be the types of the economic infrastructure? The first one is, of course, as you can see on our screen, that is the transportation. Transportation, महंगाई करना. महंगाई यहां पर
कैसे कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में हैं तो वही कि लोगों की अर्निंग्स यहां पर होंगी. फाइन, माय बैड गाइस. ट्रांसपोर्टेशन यहां पर वही लोगों की अर्निंग्स के लिए यूज किया जा रहा है, उसकी वजह से इंटर्न इन्फ्लेशन होगा ना, दैट्स अ सेपरेट थिंग. बट transportation is actually the primary agenda behind the transportation is to mobilize the product from one market to another. Fine. So transportation is actually the transportation itself contains so many things, from the automobile machinery to roads and highways and all. So everything comes under this. Next is communication. Of course, the communication is used to make money as well. And you can say that the primary objective behind communication is to make money. Fine, we use mobile phone, we use internet, we use several other methods to communicate. And that is actually used for the production processes, to carry out the economic activities. Again, the agenda is making money. Next is financial institutions. Now, what are these financial institutions? Financial institutions are basically the institutions which deals with money. The financial institution is basically divided into two categories. The first one is the banking and another one is the non-banking. तो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग में से डिवाइड किया जाता है. तो ये भी हमारी इकोनॉमी में एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है. और जैसा मैंने बोला कि डायरेक्टली पैसा कमाने के लिए हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, यूज करते हैं. लोग बैंक से पैसा बोरो करते हैं, बैंक से उन्हें पैसा लेंड करते हैं. दूसरे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने तरह तरह की सर्विसेज उनको देते हैं, लाइक कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, कोई शेयर ट्रेडिंग कराता है, कोई सिर्फ लोन देता है लाइक मुथूट फाइनेंस, कोई सिर्फ डिपॉजिट कराता है लाइक पोस्ट ऑफिस. तो ये सब क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है. लास्ट क्या लिखा हुआ है? इरिगेशन फैसिलिटी. अगर सरकार इरिगेशन फैसिलिटी फार्मर्स को देती है या दे रही है, तो अगेन फार्मर्स उसको किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे? अगेन टू मेक मनी, टू मेक प्रॉफिट. उसके लिए फार्मर्स उसको यूटिलाइज करते हैं. सो इरिगेशन फैसिलिटी भी अगेन किसका पार्ट है? आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का. और उस पर्टिकुलर केस में वो सारी की सारी चीजें यूज की जाएंगी टू मेक मनी. दूसरी तरफ क्या है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के लिए बिल्ड किया जाता है, हम लोगों के लिए बिल्ड किया जाता है, और जिसके पीछे का मोटिव पैसा कमाना नहीं होता. जैसे पहला ही क्या है? हेल्थ. दो सरकार ने हेल्थ के अंदर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है. एवरी ईयर गवर्नमेंट स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन दी हेल्थ सर्विसेज. अब ये हेल्थ सर्विसेज किन के लिए है? फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. इनफैक्ट some hospitals, some dispensaries are open for all. Doesn't matter how rich or how poor you are. If you are a citizen of India, then you're most welcome. You can easily go over there and have a checkup of yourself. So the government has provided the health infrastructure. We have the top class hospitals, we have
the dispensaries, we have the government hospitals, and that is again by the government to uplift the health status of each and every individual. Next is what? Education. So as it was in the health, education is there. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट है. So many private schools are there, big private institutions are there, but along with that government schools are also there. Navodayas are there, Sarvodayas are there, Kendriya Vidyalayas are there, Pratibha Vikas are there, MCD schools, that is there in the Delhi also. So when it comes to education, government is there to provide good education at the minimum rates, which is almost next to zero, you can say. Like these days in the government schools, the fees is just like ₹60. So this basically presents that yes, the education is affordable for all. Then housing. You know this thing that housing is again a private topic, because these days housing is just provided by the private sector, but regularly, periodically, government also provides the several houses through their housing schemes every year through the simple lottery system. But the basic thing is this, that if the private traders are selling and purchasing new or old houses, somewhere in the history that land was actually allotted by, obviously कि वो कभी ना कभी गवर्नमेंट ने ही उन्हें अलॉट करी होगी, तभी हर प्रॉपर्टी की अपनी एक लीज होती है. और गवर्नमेंट उस लीज के लिए बहुत सीरियस होती है. तो हर किसी ने वो वाला लैंड किससे? गवर्नमेंट से ही कभी ना कभी लिया हुआ होगा. Last example of the social infrastructure is the sewage system. Sewage system सोसाइटी का एक इतना इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो शायद हमें दिखता नहीं है, लेकिन अंडरग्राउंड वो सारी चीजें चलती रहती हैं. ये एक स्मार्ट सिटी की पहचान है कि वहां पर अगर सीवेज सिस्टम स्ट्रांग होगा तो अपने आप ही चीजें क्लीन आपको दिखाई देंगी. अगर सीवेज सिस्टम स्ट्रांग ना हो तो क्या हाल होगा? आप किसी भी स्लम में जाके देख सकते हैं कि वहां पर क्या होता है. सो सीवेज सिस्टम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि कंप्लीटली बाकी सारे सेक्टर्स में तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, बट इन सीवेज सिस्टम नो प्राइवेट सेक्टर इज देयर. दे नेवर कम अप फॉर दिस. सो लेट अस टॉक अबाउट देयर डेफिनेशंस नाउ. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. Economic infrastructure means those basic facilities and services which directly benefits the process of production, जो सीधा बेनिफिट करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को, and distribution of an economy, like transportation, communication, irrigation, power means electricity and all, etc. So इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीधे तौर पे आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस को बेनिफिट करे,
आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हेल्प करे और कहीं ना कहीं आपको पैसा कमाने में हेल्प करे, उसे आप नाम देते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ सोसाइटी के भले के लिए किया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ लोग इसे प्रॉफिट मेकिंग के लिए भी यूज करते हैं। व्हाट इज रिटन? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स दोज बेसिक एक्टिविटीज एंड सर्विसेज which in addition to achieving certain objectives indirectly help various economic activities, जो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। लाइक जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे हमारी सोसाइटी का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, बट साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैरी आउट करने में भी हेल्प करता है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी कंट्री के अंदर लोगों का हेल्थ स्टेटस अच्छा है, वो कम बीमार पड़ेंगे, जब कम बीमार पड़ेंगे तो काम में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। आपकी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, स्ट्रांग है, लोग ज्यादा लिटरेट होंगे, ज्यादा काम करेंगे। आपकी कंट्री के अंदर जो हाउसिंग है वो अच्छी है, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, तो कहीं ना कहीं लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी रहेगी, ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ज्यादा खुश रहेंगे वो। सीवेज सिस्टम अच्छा है, अगेन हेल्थ स्टेटस उससे बढ़िया बना रहेगा उनका, और कभी भी ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे कि भाई कि ओपन एक्सक्रीशन हो, लाइक इंडिया में बहुत बड़ा इशू है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ आपकी ही इमेज बिल्ड नहीं करता, आप ही को अपलिफ्ट नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी मदद करता है। जैसा मैंने बोला, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम वगैरह वगैरह। तो ये सारी क्या है? आपकी इकोनॉमी के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अपने आप में एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को अट्रैक्ट होके लोग दूसरी कंट्रीज में जाने का सोचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस? एक कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जस्ट इमेजिन अ कंट्री विथ वेरी लेस or no infrastructure. We cannot say no infrastructure because these days almost every economy is that much capable that they can build some basic infrastructure for their people. But still, let's imagine an economy with almost no or very less infrastructure. What you will see? That in those economies where the level of infrastructure is very less, first of all, nobody will get attracted towards that economy. FDIs would be, FDI and FII both would be so less, so nil you can say. Standard of living would be so low. Industrialization would be very stagnant or again almost next to nil. Very deprived
एक ऐसी कंट्री जिसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वहां पर इलिटरेसी कितनी ज्यादा होगी, लोगों का हेल्थ स्टेटस कितना ज्यादा बेकार होगा, अच्छा सीवेज सिस्टम नहीं होगा, अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, अच्छा इंटरनेट नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, अच्छी पावर और एनर्जी के सोर्सेज नहीं है। तो इन सारी चीजों के बिना जो मैंने अभी बोली, आज के डेट में आप अपनी लाइफ इमेजिन तक नहीं कर सकते। लाइक, कैन वी थिंक आवर लाइफ विदाउट अ मोबाइल फोन एंड इलेक्ट्रिसिटी? And you can take few more examples like internet. Can you? You cannot. We cannot. The society cannot. The economy cannot. So how we can think this thing that an economy without having such things will succeed? Not at all. There is no chance. You have to build the infrastructure. So if I talk about the importance of infrastructure, there are numerous and numerous of importance of infrastructure. It's really very important. The benefits is so many. Like first one is what? It raises productivity. If an economy is well equipped with the good infrastructure, it will surely raise its productivity. What is written? That better infrastructure leads to high level of productivity. Productivity कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगी। जब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, बिकॉज इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो वो आपकी इकोनॉमी को बेनिफिट बिल्कुल करेगी, क्योंकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट की प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है, एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देता है। तो जो उसके काम का रिजल्ट होता है वो आपको बहुत ज्यादा मिलता है अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो। सिंपल। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। सो बेटर सर्विसेज लाइक कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग etc. induces big corporate houses to enter in the domestic economy. तो अगर आपकी कंट्री में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बाहर से कंपनीज तो बिल्कुल आएंगी और घर के इन्वेस्टर्स भी बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे। तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलवेज इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, इट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट। बाहर वाले लोगों को आपकी कंट्री में एंटर करके जब वो सारी सर्विसेज मिलेंगी, लाइक अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, तो वो बिल्कुल उस कंट्री में रुकेंगे और ट्रेड करना पसंद करेंगे, विच इज हैपनिंग विद इंडिया दीज डेज। Though they do not live over here, but they hire others who control the entire business of their company in our country. Third, facilitates outsourcing. What is the meaning of outsourcing? When
you are supplying a service to other economy from your economy. Like from India, we outsource a lot of things, a lot of services. Like we outsource the first and the most popular service outsourced by the India is BPOs. It is business processing outsourcing. BPOs, popularly known as call centers in India. There are thousands or maybe lakhs of call centers are there in India. And some of them are completely working for the outsiders. They do not have any relation with the Indians. Means some company from the foreign, they have hired a company of India for their own economy. The employees are here, sitting over here, they are talking to the people of that country on phone. They are doing marketing by sitting over here. The simple concept of call centers. So it always facilitates outsourcing. It helps in the outsourcing. A country having strong system of infrastructure emerged as a destination of outsourcing over time. So एक ऐसी कंट्री जिसके पास हो अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमेशा बनती है एक अच्छी डेस्टिनेशन आउटसोर्सिंग की. इंडिया emerges as a global destination for BPOs and KPOs. BPOs मैंने बता दिया, that is business processing outsourcing. KPOs is knowledge processing outsourcing. नॉलेज शेयर की जाती है, मतलब टीचर्स वगैरह हम ऑनलाइन डिलीवर करते हैं इस कंटेंट को. देन लास्ट इज व्हाट? आईटी सेंटर्स. आईटी सेंटर्स मतलब कि ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से इंडिया में आईटी सेंटर या आईटी की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही एक्सेस में, बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, जो अल्टीमेटली आप ही की इकोनॉमी को बेनिफिट कर रही है. क्यों? क्योंकि आज की डेट में आईटी में जितनी बड़ी कंपनीज हैं सब इंडिया में है. फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टू गूगल टू एडोब, इन्फोसिस तो है ही हमारे घर की कंपनी. सो ऑल द बिग कंपनीज आर देयर इन इंडिया which are running their business successfully. Then expands the size of market. अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ आउटसोर्सिंग ही नहीं करवाता, इन्वेस्टमेंट को सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं करता, वो आपकी मार्केट का साइज भी कई गुना बढ़ा देता है. और आपकी मार्केट में जब अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बाहर से पैसा आ रहा है, जब कंपनीज अट्रैक्ट हो रही हैं, तो वो आएंगी और आपकी कंट्री को एक ग्लोबल मार्केट वाला स्टैंडर्ड देंगी. और कहीं ना कहीं वो अपने इस पूरे बिजनेस को जोड़ के रखना चाहेंगी. और इसी उसमें जो मार्केट का साइज है वो कई गुना तक बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है यूजुअली. तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ
इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं करता, वो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, वो सिर्फ आउटसोर्सिंग के ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन वो आपकी मार्केट का साइज भी कई गुना बढ़ा देता है। एग्जाम्पल, मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं दैट दीज डेज विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स वी आर powered enough to import anything at any point of time. Though you have to pay several duties for that, that's a separate thing. But even now, there are websites from which you can directly purchase, say, from China, from Europe, and those economies from which trading is not a very messy process. You can easily find such things on internet. There are so many websites which are directly importing from China for you. So this is showing what? That India has emerged as a global market. And if you are living in India, then just because of that better infrastructure, your market has become so large, huge, you can say. If the people are coming to India and the Indians are allowed to purchase anything from the rest of the world, then your market has become huge. The best example. So, importance of infrastructure is expand the size of market. So infrastructure improves connectivity between different markets. लार्ज स्केल, अच्छा इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लाइक रोड्स है, साथ में ही आपके पास दूसरे ऑटोमोबाइल के ऑप्शन है, आपके पास अपने व्हीकल्स हैं, आपके पास बसेस हैं, आपके पास ट्रेन है, आपके पास प्लेन है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के बीच की कनेक्टिविटी बढ़ाता है। आपके पास फोन है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास कम्युनिकेशन सर्विसेज है, आपके पास बैंक्स हैं जो आपको फंडिंग रेज करके देते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि देखिए कितनी ज्यादा कनेक्टिविटी है। जिस सेंटेंस का मतलब है लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज पॉसिबल, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो बहुत पॉसिबल है वेयर द साइज ऑफ मार्केट इज लार्ज। अगर मार्केट का साइज भी बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी होगी। सिंपल। द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर रेजेस द साइज ऑफ मार्केट। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो पक्का आपकी इकोनॉमी में जो मार्केट का साइज है उसे कई गुना एनहेंस कर देगा। लोग बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे ट्रेडिंग कर पाएंगे और लिबर्टी के साथ कर पाएंगे, स्मूथली कर पाएंगे, एफिशिएंटली कर पाएंगे। सो क्या लिखा है? गुड इंफ्रास्ट्रक्चर raises the size of market by providing services। तो अलग अलग सर्विसेज के थ्रू वो अपने मार्केट का साइज बढ़ा सकते हैं, जैसे कि वही बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड सेवरल अदर पॉइंट्स। तो इसकी हेल्प से आराम से मार्केट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। फाइन। इंफ्रास्ट्रक्चर के और भी बहुत सारे अपने इंपॉर्टेंस हो सकती है। लाइक आप इसके आगे एक फिफ्थ पॉइंट भी जोड़ सकते हैं, रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कई गुना बढ़ा देता है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि हमारी कंट्री में, इंडिया में, लोगों के अंदर ये वाली चीज का बहुत ज्यादा चार्म है, यू कैन से कि यस वन डे वी हैव टू सेटल इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी। हम इंडिया को छोड़ के दूसरी कंट्री में हम सेटल हो जाएंगे।
What do you think? What is the primary cause behind such kind of mentality? What I personally think, that is only one, the difference in the standard of living. And that difference is actually created by only one thing, that is the infrastructure. तो अगर किसी को हमारी कंट्री में ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, then nobody would leave. So infrastructure obviously raises the standard of living first. Second, इसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं? It raises the life expectancy also. ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है. अगर कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, पहली चीज हेल्थ स्टेटस बढ़िया होगा लोगों का, कम बीमार पड़ेंगे, वैक्सीनेशन वगैरह सब प्रॉपरली चलेगी, और अगर कोई बीमार पड़ भी गया तो हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से स्ट्रांग होंगी कि लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो बड़े आराम से पॉसिबल होगा. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी. उसके अलावा क्या, एक और बहुत बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर की, दैट इट विल एनहेंस the scope for the inventions and discoveries, innovations. ये आपकी कंट्री में बहुत ज्यादा उसका स्कोप बढ़ जाएगा. अगर आपकी कंट्री में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीपल आर मोर लिटरेट, दे आर मोर हेल्दी, एंड इफ दे आर educated enough, then in that case the R&D would be so high, the research and development would be so high. तो आपकी कंट्री से इन्वेंशंस भी बहुत होंगे. फाइन. तो ये 4, 5, 6 पॉइंट्स आप बड़े आराम से इसमें लिख सकते हैं. बड़ा डायनामिक टॉपिक और बहुत बार पेपर में आता है, राइट एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आई गेस कि आपके माइंड में मैंने इतने पॉइंट्स डाल दिए हैं कि आप कोई भी 4 बड़े आराम से लिख सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्टिविटी का बढ़ना हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग का करना हो, या मार्केट का साइज बढ़ाना हो, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ाना हो, या ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, या ज्यादा इनोवेशन इन्वेंशन का स्कोप हो. तो बहुत सारे पॉइंट्स इसके बनाए जा सकते हैं. फाइन. सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. आज की वीडियो में गाइस हम इतना ही रखते हैं. इसके आगे विल टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिया में एक्चुअली अभी कैसा हाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, हम ये भी पढ़ेंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या पॉलिसीज अभी रन कर रही है इसके रिस्पेक्ट में, द एरियाज इन विच वी आर लैकिंग, जहां पर हमारी कमी रह रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में. विल डिस्कस एवरीथिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स लाइक पावर, द हेल्थ, द एजुकेशन सेक्टर. तो हम इन सेक्टर्स को अलग अलग टारगेट करके भी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे और पढ़ेंगे. फाइन. सो टिल देन कीप रिवाइजिंग गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. प्लीज रिवाइज ऑल द टॉपिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर so that you will be able to understand the topics which you're going to study in the next video. Fine. So till then, take care of yourself, come back soon, and yes, study hard guys. Thank you so much.